So students, today we are going to learn some new things about Microsoft Paint. Okay. So it is present on chapter number 4, page number 39, exploring Microsoft Paint. Okay. So what will I learn? In this chapter, we are going to learn about how to select a picture, what is the use of the clipboard group, and how can I crop, rotate and resize and image. तो इस चैप्टर में हम इन तीनों चीजों के बारे में जानेंगे. तो बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, in this page there are some things given. Think and discuss. In the previous chapter, in the previous chapter, we have learned how to use Microsoft Paint to draw and color on the computer. Microsoft Paint files are saved as images. But what happens after we save the images? What can we do with them? यानी हमने अपने जो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? माइक्रोसॉफ्ट पेंट को कैसे ओपन करते हैं, कैसे उसमें ग्रुप्स रहते हैं, कैसे हम कलर करते हैं, कैसे हम पेंटिंग करते हैं, ये सारी चीजें हमने माइक्रोसॉफ्ट पेंट से सीख लिया था. अभी हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट को यूज करके ड्राइंग को सेव करने के बाद उस पिक्चर के साथ हम और क्या-क्या कर सकते हैं. Look at the following picture. Fill in the blanks using the given words. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? These are the words given here. Okay, email, print and show. What can dash pictures to our teachers? We can dash pictures to our teachers. We can show pictures to our teachers. B, we can dash pictures to our friends. We can email pictures to our friend. Question number C, we can dash pictures to make a photo album. We can print pictures to make a photo album. Next, page number 40. Open page number 40. Let us think. We have already saved, draw and painted a picture on Microsoft Paint and then saved it. Okay. मैंने एक ड्राइंग किया था, पिक्चर किया था और कलर किया था एक पिक्चर को, जिसे मैंने इमेज में सेव करके कंप्यूटर में रखा है. ओके. Then these are the functions that we are going to perform on a particular picture. Sometimes we need to move a part of the drawing or move the text from one part to another. The select tool is used to select the entire drawing or a part of it. To select the entire drawing, follow the steps given below. तो क्या-क्या steps हैं? Click on the select tool drop down arrow from the images group of the home tab. The drop down menu choose two section shapes. Name rectangular section and free from selection. Based on the shape selected, the selected tools gives us various options to choose from. Rectangular selection. This option is used to select a rectangular or square area of an image. Free from selection, it allows us to select an object of any shape by dragging the mouse around the shape. So now students, I am going to show you the practical how to select an image by using rectangular selection tool and free from selection tool. For example, I have drawn this picture before. यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ करके रखा हुआ है. इस पिक्चर को हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन करेंगे. कैसे करेंगे? ये तो इमेज है यहाँ पे.
मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे ओपन विथ में जाऊंगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक पॉपअप क्रिएट होगा, ड्रॉयर क्रिएट होगा, जिसमें हम मैं जाके क्लिक करूंगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। तो देखो बच्चों, ये जो पिक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन हो गया। ठीक है, अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस पिक्चर में और मैं क्या क्या एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ बाय यूजिंग सिलेक्शन टूल। ओके, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये होम टैब है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि होम टैब को क्लिक करो इमेजेस ग्रुप में, और यहाँ पे देखो एक सिलेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट, इसे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, and we are going to learn about these things, these two things only. Okay, I will show you one by one. First of all, let me use rectangular selection tool. So to select an image, I have to select rectangular selection tool, then I have to drag it around that particular picture. For example, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर के ऊपर उसे सिलेक्शन टूल को यूज कर दिया, तो अभी क्या हो गया, ये पिक्चर का वो पर्टिकुलर पोर्शन सिलेक्ट हो गया। नाउ आई कैन एबल टू ड्रैग इट, यानी मैं उस पर्टिकुलर चीज को एक जगह से दूसरे जगह को मूव करा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे उसे फिर से लेके उसी जगह पे रख भी सकता हूँ। ये क्यों जरूरी है, अभी मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे घर को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, फिर मैं इसी घर का और एक रेप्लिका या फिर एक और घर बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी, यानी कॉपी करूंगा, फिर पेस्ट कर दूंगा। तो देखो, मुझे फिर से एक घर बनाना जरूरी नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पे बन के रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसे रख सकता हूँ, और एक घर भी हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पेड़ को अगर सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इस पेड़ को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, इसे कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे दो पेड़ हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं सारे चीजों को यूज करने के लिए, और जो शेप रेक्टेंगुलर शेप है उसे सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल का जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू फ्री फ्रॉम सिलेक्शन टूल। इट इज यूज टू, देखो, तो इसे मैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ यूज कर सकता हूँ जो कि रेक्टेंगुलर शेप का नहीं है। ठीक है, तो मैं इसे उसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके घुमाऊंगा, और उसे जहां से शुरू किया था वहां तक लेके छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करूंगा, तो देखो सिर्फ वही पिक्चर सिलेक्ट हुआ है। देखो बाकी सारी चीजें व्हाइट हो चुका है। तो इस पेड़ को मैं यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे रख दूंगा, ये और नो, यहाँ पे भी इस पेड़ को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, कहीं पे भी रख सकता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे कलर फिल टूल यूज करके यहाँ पे कलर फिल कर सकता हूँ स्काई कलर का, जिसकी वजह से वो क्या होगा, मैच हो जाएगा यहाँ पे। या फिर यहाँ पे मैं कलर पिकर टूल यूज करके यहाँ पे इसे फिल कर सकता हूँ, देखो वो पेड़ भी बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। So there are two types of selecting tools that I have already shown you to how to use these two types of tools. First one is rectangular selection tool. It is used to select rectangular portion of the picture. ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन को सिलेक्ट करने में ये आसान होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आसान होता है। और क्या है, there is also a free from selection tool. Free from selection tools help us to select any shape of a picture. किसी भी शेप की जैसे हम उसको सिलेक्ट कर पाते हैं by using the mouse and dragging it around the picture. ठीक है,
मैं माउस को यूज करूंगा और उस टूल को एक पिक्चर के चारों तरफ घुमाऊंगा बाय यूजिंग ड्रैगिंग। ड्रैगिंग तो पता होगा, we have to move the mouse by pressing the left mouse button। लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करते हुए, प्रेस करते हुए माउस को एक जगह से दूसरे जगह को मूव कराना है, पॉइंटर को, ठीक है, उसे ही ड्रैगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, so now students we will go to the I can tell option that is given on page number 41। okay, so I can tell को अच्छे से देखो। under the selection tool there are 4 more options। these are selecting all, invert selection, delete and transparent selection। explore these and write down what they do। इसे तुम्हें खुद ब खुद एक्सप्लोर करना है घर में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है what are functions of those 4 options। first one is the select tool, selects the entire image। second one, the invert selection tools let us to invert the colors of an image। यानी एक व्हाइट होगा तो उसे ब्लैक कर देगा, ठीक है, यानी इन्वर्ट, उसे उल्टा कर देगा उस कलर को। नेक्स्ट वन, डिलीट ऑप्शन डिलीट्स द सिलेक्टेड रीजन ऑफ एन इमेज। यानी अगर ये एक इमेज है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे अगर मैंने रेक्टेंगुलर टूल में सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे डिलीट अगर मैंने क्लिक कर दिया तो वो पर्टिकुलर पोर्शन डिलीट हो जाएगा, यानी इरेज हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया और इन्वर्ट सिलेक्शन टूल को यूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इन द ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन we can choose a part of image and select a specific color, then we can change the color to the image to transparent। for example यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोई किसी भी पिक्चर के किसी भी पोर्शन को, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को करके हम उस पर्टिकुलर चीज का क्या कर सकते हैं, कलर ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, यानी डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में जानेंगे, अभी ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमें पर इस बुक में अभी इस क्लास में हमें सिर्फ सिलेक्टिंग एन इमेज में सिर्फ रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल और फ्री फ्रॉम सिलेक्ट टूल्स को ही जानना जरूरी है। बाकी ये सारे चीजें जो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है, मैंने उसका आंसर लिखा है, पर ये इस तुम्हारे क्लास 2 में ये जरूरत नहीं है, हम हायर क्लासेस में इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वी विल गो टू द क्लिपबोर्ड ग्रुप। व्हाट इज क्लिपबोर्ड ग्रुप, यहाँ पे देखो, दिस वन, ओके, दिस वन इज नोन एज क्लिपबोर्ड ग्रुप। देखो यहाँ पे नीचे क्लिपबोर्ड लिखा है, ठीक है। द क्लिपबोर्ड ग्रुप, the clipboard group is present under the home tab of Microsoft Paint application। it consists of 3 tools: cut, copy, paste। यहाँ पे देखो, this one is the clip group, there are 3 options given, one is cut, copy, first one is cut, second one is copy, third one is the paste, okay। these 3 are the tools present inside the clipboard group। for cutting and pasting an image, today we are going to learn about how to cut and पेस्ट एन इमेज। आई हैव ऑलरेडी शोन यू, मैंने अभी दिखा दिया था तुम्हें कि कैसे कट करना है, कैसे पेस्ट करना है। अभी हम इसे अच्छे से फिर से देखेंगे। तो कट ऑप्शंस
take out the selection which can be then be pasted. To cut a picture or a part of it and paste it on another part of the picture, follow the steps given below. Select the part of the drawing you want to cut by using the select tool in the image group. Next, click on the cut option in the clipboard group. Click on the paste option in the clipboard group. With the picture still selected, move it to the new place in the drawing area. मैं अभी दिखाने वाला हूं कि कट कैसे करें, पेस्ट कैसे करें. ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से. फॉर एग्जाम्पल मैं इस घर को कट करना चाहता हूं और दूसरे जगह पे पेस्ट करना चाहता हूं. मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी चूज्ड हियर. यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल. नाउ आई हैव टू कट इट हियर. यहाँ पे देखो अच्छे से क्लिपबोर्ड ग्रुप, देन आई हैव टू क्लिक ऑन द कट ऑप्शन. कट हो गया. अभी पेस्ट ऑप्शन देखेंगे. यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा. फिर इसे कहीं पे भी पिक्चर के ऊपर मैं जाके इसे ऐसे रख सकता हूँ. ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह को हम मूव करा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक. तो सिंपल है, सिंपल स्टेप्स है. सबसे पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना है. कैसे सिलेक्ट करेंगे? बाय यूजिंग द सिलेक्शन टूल. ठीक है, सिलेक्शन टूल्स को यूज करके हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे. देन वी हैव टू क्लिक ऑन द कट ऑप्शन गिवन इनसाइड द क्लिपबोर्ड ग्रुप. कट हो गया पिक्चर. अभी हम पेस्ट करेंगे. फिर जहां भी जरूरी है उस पिक्चर को वहां पे लेके उसे छोड़ देंगे. ठीक है, हो गया कट पेस्ट. Now students, we will learn how to copy and pasting an image. Cut paste हो गया. Copy paste कैसे होगा? तो copy option, make a copy of the selection which can then be pasted. To copy a picture or a part of it and paste it in another part of the picture, follow the steps given below. What are the steps? First step is select the part of the drawing you want to copy by using the selected tool, select tool in the image group. Select tool को use करना है. Second one, click on the copy option on the clipboard group. Click on the paste option in the clipboard group. With the picture still selected, move it to the new place in the drawing area. यहाँ पे वो दिखाया गया है इस पेज में, पेज नंबर 43 में. इट हैज बीन शोन हियर टू हाउ टू मेक अ रेप्लिका, यानी कॉपी करके कैसे पेस्ट करेंगे. तो इट वाज दिस पिक्चर इज आल्सो प्रेजेंट एंड अनदर कॉपी यानी अनदर रेप्लिका विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ इट. ओके, लेट्स सो हियर आई एम गोइंग टू शो इट. कॉपी पेस्ट कैसे करें. कट पेस्ट हो चुका है, अभी कॉपी करेंगे. कैसे? यहाँ पे by using selection tool we have to select the particular picture. Then we have to click on the copy option given inside the clipboard group. Copy हो गया. Now I have to press on the paste option given inside the clipboard group. अभी देखो एक ही पिक्चर का दो कॉपी हो गया. एग्जैक्ट रेप्लिका क्रिएट हो गया. तो ये हो गया हमारा कॉपी और पेस्ट. Simple procedure. Use selection tool, select the image, then click on the copy option, then click on the paste option, drag the picture to the desired area. ठीक है. Now we will go to the knowledge byte that is given on page number 43. Knowledge bytes. The cut and copied parts of the picture is stored in a temporary folder called clipboard.
जब हम कॉप करते हैं या फिर कॉपी करते हैं किसी पिक्चर को, वो टेम्परली जब तक हम उसे पेस्ट नहीं करते कंप्यूटर में एक फोल्डर में सेव होके रहता है टेम्पररीली, दैट इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। ओके, आई एम स्मार्ट देखो यहाँ पे, टू सिलेक्ट एंटायर पिक्चर वी हैव टू सिलेक्ट कंट्रोल प्लस ए, यानी कंट्रोल की के साथ ए को क्लिक करके हम पूरी तरह से पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। टू कट अ पार्ट ऑफ द पिक्चर वी कैन यूज कंट्रोल प्लस एक्स, टू कॉपी अ पार्ट ऑफ पिक्चर वी कैन यूज कंट्रोल प्लस सी, टू पेस्ट द कॉपीड पार्ट्स ऑफ द पिक्चर वी हैव टू कंट्रोल भी। तो ये शॉर्टकट्स हैं, कंट्रोल ए यानी पूरी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगा। देखो कंट्रोल प्लस ए, देखो यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंट्रोल, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, उसके साथ मैं सिलेक्ट क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल के साथ एक्स क्लिक करूंगा तो ये कट हो जाएगा, फिर कंट्रोल प्लस भी करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। कॉपी कैसे करें, पेस्ट कैसे करें, फिर ये कट हो गया पेस्ट हो गया शॉर्टकट। अब कॉपी पेस्ट में दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस सी करो, उसके बाद कंट्रोल प्लस भी करो, देखो ये रेप्लिका बन गया। ठीक है, रेप्लिका बन गया। तो these are the shortcut keys for copy and pasting, cutting and pasting part of a picture.